Assalamu alaikum students. This is the sixth and the last part of the chapter organic compound. Organic chemistry. ठीक है. Now we will discuss alcohols in detail, and ethanol is that alcohol that is to be discussed in detail. Okay. Now what are alcohols? Alcohols are the hydroxy derivatives of alkanes. ठीक है. यहाँ पे hydrogen atom of alkanes is replaced by OH group. ठीक है. Leading to the formation of alcohol. For example, this is CH4. ठीक है. CH4 is methane. तो मीथेन के एक हाइड्रोजन को अगर हम OH से रिप्लेस कर दें बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप से, देन दिस इज एल्कोहल, और ठीक है, हेंस दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स. दिस इज मीथेनॉल. सिमिलरली करस्पॉन्डिंग एल्कोहल फॉर इथेन इज एथेनॉल एटसेट्रा, है ना. नाउ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल्स. फंक्शनल ग्रुप इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है. OH group is the functional group in case of alcohols, and methanol or CH3OH is the first member of the homologous series alcohols. ठीक. And monohydric dihydric alcohols क्या होते हैं? In case of monohydric alcohols only one hydrogen of the alkane is replaced by one OH group. In case of dihydric alcohols two hydrogens are replaced by two OH groups. ठीक है. ट्राईहाइड्रिक में 3 हो जाएंगे. 3 OH groups replace 3 hydrogen atoms. ठीक है. Formula for alcohols, general molecular formula is CnH2n plus 1 OH, where n is the number of carbon atoms. ठीक. अब देखो, this one is monohydric alcohol CH3 CH2 OH. This one is मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. ओके. अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे 2 OH से ग्रुप से, तो दिस वन इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल. दिस वन इज इथेनॉल एंड दिस वन इज इथेन 1,2-डायोल. ओके. नाउ सोर्सेज ऑफ एल्कोहल्स. डिस्ट्रीब्यूशन. एल्कोहल्स आर नॉट जनरली फाउंड इन नेचर. ठीक है. मेन सोर्सेज इथेनॉल वॉज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स दैट इज ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करते हैं. ठीक है. देन इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड. ठीक है. Ethanol is also produced from ethene, which is abundantly available as a byproduct of cracking of petroleum, that is pyrolysis. ठीक है. ethene का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, देन इथेनॉल मिल जाता है. ethene is C2H4. ठीक है. ethene is C2H4. C2H4 का ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस इथेनॉल. ठीक है. नाउ nomenclature of alcohols. There are 2 main ways of naming alcohols. First one is the common or trivial system. इसमें क्या करते हैं बेटा? Alkyl group, alkyl alcohol is the general name. ठीक है. Where for one carbon atom the alkyl group is termed as methyl group, hence it is methyl alcohol. Ethyl alcohol for 2 carbon atoms, propyl alcohol for 3 carbon atoms, and so on. ठीक है. Now in case of propyl alcohol when OH group is attached at the second carbon, then it is termed as isopropyl alcohol. That is the position isomer of propyl alcohol, normal propyl alcohol. ठीक है. IUPAC name is general IUPAC name is alkanol. ठीक है. वर्ल्ड रूट आपका पता है. For 1 carbon atom meth, for 2 eth, for 3 prop, for 4 but, for 5 pent, and so on. Okay. So methanol, ethanol, propane 1 all, propane 2 all. When OH group is attached at second carbon atom, then it is termed as propane 2 all. तो बेटा you have to give the position of the carbon atom to which the OH group is attached. ठीक है. Now branched or structural formula of ethanol is this. ठीक. यहाँ पे सारी bonds दिखा रहे हैं. Tetravalency of carbon and the atoms or the group of atoms to which each carbon atom is bonded to. Okay. Now preparation of ethanol. Lab preparation by hydrolysis of alkyl halides. Hydrolysis means lysis or breakdown of any compound in presence of water. ठीक है. hydrolysis of alkyl halide. ठीक है. Now alkyl halide plus alkali solution. Any alkali you can take NaOH as well as KOH. ठीक है. alkyl halide mostly bromides and chlorides are taken. ठीक है. Alkyl bromides and alkyl chlorides are taken for the production of alcohol by hydrolysis of alkyl halides. So alkyl halide आप कोई भी ले लो. इस केस में इन्होंने ले लिया है C2H5Br. C2H5Br plus NaOH. ठीक है. NaOH is the alkali. Okay. The bond between the carbon and bromine atom will break, and the bond between sodium and oxygen atom will break. ठीक है. The new bond that is being formed is between sodium and bromine, leading to the formation of sodium bromide, and C2H5 and carbon and oxygen of the OH group, leading to the formation of C2H5OH, that is ethanol. ठीक. plus NaBr. ओके. अब C2H5OH को आप ऐसे C2H5OH लिख दो या इस तरह से लिख दो CH3CH2OH. ठीक है. दिस वन इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब ब्रांच स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारी बॉन्ड्स दिखा देते हैं. This one is ethanol. ठीक है. Similarly this is chloroethane
क्लोरोइथेन प्लस KOH aqueous। अब ये याद रखना कि aqueous KOH ही सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, यहाँ पे OH रिप्लेस कर देगा Cl को, ठीक है। तो aqueous KOH गिव सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर यहीं पे हम क्या ले लेंगे, एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो रिएक्शन दूसरा हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल के हमें इथीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, इफ aqueous KOH इज मेंशन तभी आपको क्या बनाना है बेटा, क्या बनाएंगे, दिस एल्कोहल, ठीक, प्लस KCl, ओके। अगर यहाँ एल्कोहलिक KOH मेंशन होगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा, क्या रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया एल्कोहलिक KOH एल्कोहलिक, ठीक, और यही सेम सारा रिएक्शन कंडीशंस हैं, तब क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। HCl निकल जाएगा, एक टू बॉन्ड्स विल बी ब्रेकिंग एंड टू न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्मिंग बिटवीन HCl एंड कार्बन, कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा इफ एल्कोहलिक KOH वी हैव टेकन, ठीक है। दिस HCl मॉलिक्यूल विल रिमूव, क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर प्लस KCl, ठीक। Industrial method is not in your syllabus. See the physical properties now. Physical properties of ethanol. It is inflammable volatile liquid. ठीक है, volatile that means it vaporize at room temperature and it is inflammable as well. Inflammable means it catches fire. ठीक है. Toxic in nature. It is toxic in nature. Small doses of methanol can cause blindness or death. Small doses of methanol that is CH3OH is fatal. ठीक है, if consumed. Color and odor. Colorless liquid with characteristic pleasant odor. Odor इसका आ रहा है पेरिडीन से, ठीक है। इसमें पेरिडीन डाल देते हैं टू गिव इट ओडर, एंड क्या करते हैं बेटा, कॉपर सल्फेट डाल देते हैं तो टू गिव इट कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर। जो कैरेक्टरिस्टिक ब्लू कलर होता है स्पिरिट का, डेट इज यूज्ड इन स्पिरिट लैम्प्स एज वेल एज फॉर मेडिकल पर्पसेस, ठीक है। तो कलर उसका किस वजह से है, कॉपर सल्फेट की वजह से, ओके। नाउ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाटर में भी सॉल्युबल है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स एंड रेजिन्स एंड डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस। डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इसका करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से बहुत ज़्यादा है, वाई, क्योंकि बेटा ये एसोसिएट कर जाता है, आपस में क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जैसे ये है CH3OH, तो ये हाइड्रोजन कैसा है, दिस वन, इसमें चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, दिस वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ये स्लाइट पॉजिटिव एंड स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो दूसरा एल्कोहल का ही पड़ा होगा मॉलिक्यूल, दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ methanol, ठीक है। so this one is hydrogen bond, the temporary bond that is formed between the electronegative atoms such as this nitrogen, oxygen and fluorine, ठीक है, जिनका comparable size हो हाइड्रोजन से। उस क्लोरीन is also electronegative but it does not form hydrogen bond with hydrogen bond. Why? Because of its size is very high, ठीक है, साइज हाई हो जाता है इन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। और ये कैसा है, टेम्पररी बॉन्ड है, ठीक है, कोई भी परमानेंट बॉन्ड, इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉन्ड। सो दिस वन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है डेट इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। टेम्पररी बॉन्ड को ही हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ओके। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द रीजन बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। अब ये हमने मेथेनॉल ले लिया, ठीक है। मेथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, वाई, बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, ठीक है। अब वाटर इज दिस वन इज वाटर ना, ठीक है। हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन हैज, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन है, यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन है। ऑक्सीजन विल गेन स्लाइट नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। एंड हाइड्रोजन विल गेन स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी वही सेम केस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी बेटा दिस टेम्पररी बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, कंबस्शन, कंबस्शन मीन्स बर्निंग, ठीक है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स burn in presence of oxygen to form carbon dioxide and water, ठीक है। ethanol is also an organic compound, so it burns in presence of oxygen to give carbon dioxide and water, ठीक है, burns in air or oxygen. Now oxidation, ethyl alcohol on oxidation produces acetaldehyde which on further oxidation produces acetic acid, ठीक है। ईथेन का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा, डेट इज इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। हियर एसिटाल्डिहाइड इज द एल्डिहाइड दैट इज बीइंग फॉर्म्ड एंड इसका ऑक्सीडेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट विल बी एसिटिक एसिड, ठीक है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। अल्कोहल किससे मिल रहा है, एल्केन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल मिला, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड मिला, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड मिला।
और अगर हम रिडक्शन करेंगे तो वापस यही चलेगा, एसिड रिड्यूस होकर एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होकर एल्कोहल बनाएगा, एल्कोहल रिड्यूस होकर एल्केन दे देगा, ठीक है। नाउ सोडियम के साथ इथेनॉल क्या बना लेता है, सोडियम इथॉक्साइड। वाई? बिकॉज दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, ये हाइड्रोजन एसिडिक है बिकॉज इट इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इट इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, हेंस इट इज एसिडिक। तो ये सॉल्ट बना लेता है सोडियम इथॉक्साइड, ओके, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। नाउ एसिटिक एसिड के साथ क्या हो जाता है बेटा, एस्टेरिफिकेशन हो जाता है, इथाइल इथेनोएट बन जाता है, ठीक है। एल्कोहल विद एसिड फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, आप ये देख लो। सो दिस वन इज इथेनॉल, दिस वन इज एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये रिमूव कर देगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस वाटर मॉलिक्यूल माइनस वाटर हो जाएगा, ठीक है, एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ this one C2H5O C double bond O CH3, this one is ethyl ethanoate, ठीक है। और ये क्या है, एस्टर है, this one is एस्टर। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टेरिफिकेशन। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। व्हेन अल्कोहल एंड एसिड combine in presence of concentrated H2SO4, removal of water molecule or dehydration takes place, leading to the formation of this ester, that is ethyl ethanoate, that has a pleasant fruity smell, ठीक है, pleasant fruity smell, and the process is termed as esterification. Now if we add sulfuric acid, only sulfuric acid in excess at 170 degrees Celsius to ethyl alcohol, ethene will takes place, dehydration हो जाएगा, removal of water molecule and formation of ethene, ठीक है, and water, ठीक। नाउ इफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड इन लिमिटेड क्वांटिटी एट 140 डिग्री सेल्सियस, अब हमने एल्कोहल एक्सेस में ले लिया है, कॉन्क H2SO4 लिमिटेड लिया है 140 डिग्री सेल्सियस पे, तो इथीन ना फॉर्म होकर डाईइथाइल ईथर फॉर्म हो जाता है, ओके। नाउ यूजेस, इथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है, इन थर्मोमीटर्स एंड स्पिरिट लेवल्स, लो फ्रीजिंग मोबाइल लिक्विड। नाउ in manufacture of chemicals, acetaldehyde, acetic acid, chloroform, etc., diethyl ether, ठीक। Now spurious alcohol, what do you mean by spurious alcohol? Alcohol is used in the distilled form for human consumption, ये बिल्कुल प्योर है, that is collected through distillation, ठीक है। Undistilled alcohol contain large amounts of methanol in the mixture and is called spurious or illicit alcohol। तो जो अनडिस्टिल्ड एल्कोहल होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मेथेनॉल होता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्यूरियस और इलिसिट एल्कोहल, ठीक है। तो मेथेनॉल इज कॉल्ड स्प्यूरियस और इलिसिट एल्कोहल एंड इट इज़ फेटल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। स्प्यूरियस एल्कोहल में बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स और वार्निशेस। स्प्यूरियस एल्कोहल को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स और वार्निशेस, ठीक। मिथाइलेटेड स्पिरिट और एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कंटेन अबाउट 5% मिथाइल एल्कोहल एंड इज टर्म्ड एज मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक। नाउ डीनेचर्ड एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल कंटेनिंग पेरिडीन और कॉपर सल्फेट इज टर्म्ड एज डीनेचर्ड एल्कोहल, ठीक है। पेरिडीन इज एडेड टू गिव इट द ओडर एंड कॉपर सल्फेट इज एडेड टू गिव इट द कलर, ठीक है। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, अटैच टू एन एल्काइल ग्रुप CH3, जैसे मिथाइल से COH जुड़ा हुआ है, देन दैट इज इथेनोइक एसिड, ठीक है। और जब डायरेक्टली ओनली HCOH इज द फॉर्मिक एसिड दैट इज present in the sting of ants, ठीक है। एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड इज ऑल्सो टर्म्ड एज इथेनोइक एसिड, IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, ओके। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH, R इज आइदर H और एल्काइल, हाइड्रोजन इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड, एंड एल्काइल in case of any other acid other than formic acid, ठीक है। functional group of carboxylic acids is COOH, that is carboxylic group. The acidic character in carboxylic acids is due to the presence of the replaceable hydrogen atom in the carboxylic group, ठीक है। this one is the replaceable hydrogen atom. Classification, carboxylic acids are classified as monocarboxylic, di, tri, etc., ठीक है, depending upon the number of COH groups present in the molecule. For example, acetic acid is a monocarboxylic acid. Why? Because only one carboxylic group is present in this, ठीक है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका है, एग्जाम्पल इज दिस ऑक्सैलिक एसिड इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड, इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज इट्स IUPAC नेम विल बी इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ओके, इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ठीक। नाउ
Sources: acetic acid or ethanoic acid. Acetic acid is a fatty acid and the chief constituent of vinegar. It occurs in freeze state in fruit juices which on fermentation have gone sour. ठीक, it is present in the combined state in plant extracts. Nomenclature of carboxylic acid. General IUPAC name is alkanoic acid where alk is the word root. ठीक है, वर्ड रूट आपका हो जाएगा 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप एंड सो ऑन. कॉमन और ट्रिवियल नेम इन दिस सिस्टम द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव नेम्स of lower members derived from the Latin or Greek word indicating the source of the acid. The common names have ending ic acid. Formic acid source red ant को formica बोलते हैं, hence formic acid. Acetic acid source vinegar, Latin vinegar को acetum, hence acetic acid. ऐसे butyric acid alcohol बटर से निकला है. ठीक है, नाउ रैंसिड बटर में ब्यूटारिक एसिड प्रेजेंट होता है और ब्यूटेनोइक एसिड. ठीक, नाउ IUPAC system general name is alkanoic acid. E of the corresponding alkane is replaced by oic acid. ठीक, सो फॉर्मिक एसिड के लिए IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड. वाई? बिकॉज ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट. एसिटिक एसिड का इथेनोइक एसिड 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड. आइसोब्यूटायरिक एसिड जब बेटा COH ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन. ठीक है, नाउ चलो. Now preparation of acetic acid or ethanoic acid by oxidation of ethyl alcohol is only in your syllabus. Ethyl alcohol on oxidation either in the presence of acidified KMnO4 or K2Cr2O7. KMnO4 is potassium permanganate and K2Cr2O7 is potassium dichromate. ठीक है, lead to the formation of acetaldehyde which on further oxidation lead to the formation of acetic acid. Alcohol से aldehyde मिलेगा, aldehyde से acid मिलेगा. Oxidation of primary alcohol with acidified potassium dichromate gives aldehyde which on further oxidation give carboxylic acids. ठीक है. Now physical properties of acetic acid. Physical state at ordinary temperatures acetic acid is colorless liquid. Odor solubility, it has a pungent odor of vinegar miscible with water, alcohol and ether. ठीक है, again it can form hydrogen bonds with water, that's why it is miscible with water. ठीक है, boiling point, it boils at 118 degrees Celsius. There is a strong hydrogen bonding between acid molecules and hence acetic acid has a high boiling point. अब acid molecules में strong hydrogen bonding होती हैं. So this one is R कोई भी alkyl group हुआ. ठीक है, C डबल बॉन्ड OOH. सो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन इज देयर ना. अब दूसरा आप ले लो दिस वन. ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया. इनके बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर. 2 मॉलिक्यूल्स हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन देम. ठीक है, दैट लीड्स टू द हाई बॉइलिंग पॉइंट. ठीक, now liquefaction, pure acetic acid forms an ice like solid on cooling, that is termed as glacial acetic acid. Anhydrous acetic acid on cooling below 16.5 degrees Celsius crystallizes out in the pure form, forming a crystalline mass resembling ice that has melting point across 17 degrees Celsius. Hence pure acetic acid is called glacial acetic acid. Now chemical properties. acetic acid का acidic nature देख लो. acetic acid is acidic in nature. ठीक है, litmus क्या है बेटा? Why? Because it has a replaceable hydrogen at. ठीक है, now litmus is an indicator and acetic acid क्या है? It is an acid so it will turn blue litmus red. ठीक, अल्कलीज के साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर दे विल फॉर्म. ठीक है, CH3COH प्लस NaOH क्या दे देंगे? CH3COONA प्लस वाटर. सो हियर इज अगेन एसिड एंड बेस. ठीक है, CH3COH इज द एसिटिक एसिड एंड दैट वी आर स्टडिंग. ठीक है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द अल्कली और बेस. ठीक, सो एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्योंकि यहाँ पे बेटा 2 OH माइनस आइंस निकलेंगे तो 2 OH प्लस आइंस वी रिक्वायर इन ऑर्डर टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स. ठीक है, सो calcium acetate CH3COO whole twice Ca is the calcium acetate, that is the salt that is being produced through neutralization reaction of acid and base. ठीक है, and 2 water molecules. ठीक है, this one is calcium acetate and water. And now this is acetic acid plus ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide is a monoacidic base and this is a monobasic acid. तो यहाँ पे एक एक ही molecules लगेंगे and formation of what does it form? क्या बनेगा? CH3COONH4 that is ammonium acetate plus water. अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन यहाँ भी हो रहा है. नाउ दीज रिएक्शंस आर नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन इज नॉट इन योर सिलेबस. रिएक्शन विद एल्कोहल्स दैट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज इन योर सिलेबस. अभी एस्टेरिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एसिटिक एसिड विद एल्कोहल और इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दैट इज एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट हियर, है ना. दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फॉर्मेशन ऑफ एस्टर विद रिलीज ऑफ वाटर. ठीक है,
leading to the formation of ester, and this is also termed as esterification reaction. This ester has a pleasant fruity smell. ठीक है, and this is an identification test for acid as well as ethanol. ठीक है. Now uses of acetic acid in manufacture of important organic compounds. Acetic acid is used in the preparation of vinyl acetate, used in resins. Acetic anhydride used in aspirin. Aspirin is a medicine. ठीक है. Cellulose acetate used in synthetic fibers, various dyes, perfumes and medicines. ठीक है. Now in the food industry, it is used in the food industry as vinegar for preserving and flavoring food. As a solvent, it dissolves phosphorus, sulfur and iodine. Hence, it is used as a solvent. As a laboratory reagent, it is used for preparing acetone esters, etc. As a coagulant for coagulating rubber. Okay.